you all in today's online session for statistics part 2, China 12, chapter number 1, probability. In the last lecture, we have solved till 7 questions of exercise 1.4 of conditional probability. Hope so you understood that sum. You have kept the practicing of that sum at home so many times. Okay. So that now you are a champ of 1.4 till question number 7. Carrying forward to question number 8. One joint family has 3 sons and 2 daughters. एक फैमिली में 3 सन है और 2 डॉटर है, whereas the other joint family के अंदर 2 सन और 4 डॉटर है. One joint family सिलेक्ट करना है. अब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है. And a child is randomly selected. अब फैमिली भी सिलेक्ट करना है और चाइल्ड भी सिलेक्ट करना है. Find the probability that selected child is a girl. वो यहाँ पे गर्ल होनी चाहिए, मतलब डॉटर होनी चाहिए. ओके, राइट द सेंटेंस. Probability of selecting a family and a girl child. Probability of selecting a family and a girl child. Next one में लिखे. Probability that a girl child is selected from the first family. A girl child is selected from the first family. First family में कितने गर्ल है हमें? ओके, 2 गर्ल है. तो P of A M upon N 2C1 टोटल कितने हैं? 5C1 that is 2 upon 5. नेक्स्ट लिखे. Probability of selecting a girl child from second family. A girl child from second family. मतलब एक और आंसर अवेलेबल हो गया. तो P of B that is M upon N 4C1 upon 6C1 that is 4 upon 6. You can say 2 upon 3. Okay. Write it down. ये गर्ल चाइल्ड एक आंसर, ये गर्ल चाइल्ड सेकेंड आंसर, 2 आंसर अवेलेबल हो गए. ओके. सो P A union B more than 1 आंसर अवेलेबल, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा. सो 2 upon 5 plus 2 upon 3 LCM 15. 6 plus 10 that is 16 upon 15. ये गर्ल चाइल्ड सिलेक्ट हुई 16 upon 15. इतना लिखो पहले. सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सम स्टिल पेंडिंग. ये तो मैंने गर्ल चाइल्ड सिलेक्ट किया, फैमिली सिलेक्ट करना बाकी है. Okay, write down next. Probability that continue मतलब कि a family selected out of 2 families. Probability of selecting a family out of 2 families is 1 upon 2. 2 में से कोई भी एक फैमिली सेलेक्ट होगी, उसके चांसेस 1 upon 2. Therefore 1 upon 2 into 16 upon 50 is equal to 8 upon 50. अब चाइल्ड भी सिलेक्ट हो गया और साथ में भी फैमिली भी आपको सिलेक्ट करके हो गई. नंबर 9. There are 10 ice cream cones in a box, of which 3 cones weigh less than specification and the rest of the 7 cones have the specified weight. 10 ice cream cones है, उसमें से 3 कोन का वेट लेस है, जितना स्पेसिफाइड होना चाहिए उससे कम है, आपके पास 7 जो रिमेनिंग वो अच्छे सही है. 2 कोन मुझे सिलेक्ट करना है 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, मतलब वापस रख देना है, उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कोन्स सेलेक्टेड वेट लेस देन द स्पेसिफाइड वेट. दोनों यहाँ पे लेस देन वाला कितने मेरे पास 3. ठीक है, पहली बार 3 में से एक सिलेक्ट किया, उसको वापस से बॉक्स में रख दिया, तो 3 के 3 ही रहे और 10 के 10 ही रहे.
वापस मैंने सिलेक्ट किया उस तीन में से, ओके, वापस से बॉक्स में रख दिया विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दिया वापस से उसका, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटम्स विद रिप्लेसमेंट के जो थे टोटल में वो हमेशा सेम ही रहेंगे, विदाउट में कम होते हैं, ओके, विद में सेम रहेगा, ओके। अनदर सेंटेंस, probability of selecting two cones, one by one, with replacement, okay, from 10 ice creams cones in a box. 10 ice cream cones from a box. Next example लिखिए. Probability that the first cone selected weight less than the specification. First cone selected weight less than the specification. P m upon n 3 upon 10. 3 C1 upon 10 C1. Write down 3 upon 10. Next, probability that selecting the second cone weight less than the specification, so P of B m upon n, ये भी 3 upon n, रिप्लेसमेंट है, वापस से सिलेक्ट करके चेक किया, वापस से बॉक्स में रख दिया, वो 3 के 3 ही रहे और 10 के 10 ही रहे, ओके। सो 3 upon 10। अब मुझे 2 पॉइंट्स, इसमें क्या एक एक थे, एक बच्ची, एक गर्ल, 2 आंसर थे, ठीक है। यहाँ पे एक ही आंसर का 2 कौन सिलेक्ट करना, यहाँ पे सिंगल आंसर है, तो प्रोबेबिलिटी A intersection B equal to PA multiplied by PB, that is 3 upon 10 multiplied by 3 upon 10 is equal to 9 upon 100. Write it down. Okay, number 10. सुनना क्वेश्चन आराम से. There are 10 CDs in a CD rack. 10 CD है CD rack के अंदर. इसमें से 6 एक्शन फिल्म की CDs है और 4 ड्रामा फिल्म की CD है. 2 CD मुझे सिलेक्ट करना है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. मुझे बॉक्स के अंदर रखना नहीं है. चेक करना है कौन सी CD है. देखो, देख के साइड पे रख दो, मतलब यहाँ पे कम हो जाएगा. From this box, find the probability that पहली CD जो होगी वो एक्शन CD होगी, सेकंड CD जो होगी ड्रामा की CD होगी. ठीक है, चलो लिखो सेंटेंस. Probability of selecting 2 CDs. Probability of selecting 2 CDs 1 by 1 without replacement from 10 CDs in a CD rack. From 10 CDs in a CD rack. मेरे पास 6 एक्शन CD है, ठीक है, 4 ड्रामा CD है. मुझे 1 by 1 सिलेक्ट करना है. पहली CD जो सिलेक्ट करूंगा एक्शन वाली होनी चाहिए, दूसरी वाली जो है वो ड्रामा वाली होनी चाहिए. ठीक है, सेंटेंस लिखो. Probability of selecting a action CD
from the box. Probability of selecting an action CD from the box. So P of A m upon n, that is 6 upon 10. 6 में से कोई भी शेयर कर लूंगा. Okay, 6C1 upon 10C1, that is 6 upon 10. Next देखो, probability of selecting a drama CD from the box. Probability of selecting a drama CD from the box. P of B. अब ड्रामा की सीडी तो 4 है, 4 अपॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. बॉक्स में से मैंने एक्शन की निकाल के रख दी है. अब बॉक्स में 9 होंगे तो 4C1 अपॉन 9C1, दैट इज 4 अपॉन 9. 4C1 upon 9C1, that is 4 upon 9. Therefore, PA intersection B equal to PA into PB is equal to 6 upon 10 multiplied by 4 upon 9. 3 2s are, 3 3s are, 2 1s are, 2 5s are, that is 4 upon 15. Pop it down. Okay, question number 11. If two balanced dice are thrown, then find the probability that number 1, at least one dice or number 5. Okay, लिखो पहले. Probability of tossing two dice simultaneously. Dice का sample space लिख दे. 2 dice का sample space आप लिख दे. Okay, I also sample space is done. Now write down number 1. Probability that at least one dice or number 5.
the sample space लिख दिया है. Now we can give direct answer. Probability that at least one dice for number 5. फर्स्ट का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं. अब एक डाइस पे नंबर 5 आते हैं. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो. पहले एक चीजें दिखाता हूं, डायरेक्ट वाला भी दिखाता हूं. पहले मेथड वाइज लिख लेते हैं. P of A लिखेंगे हम लोग. पहले लिखेंगे सेंटेंस. प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाइस फॉर नंबर 5 is 6/36. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. So 6/36. Probability that first dice for number 5 P of A m/n 6/36. 6/36. Probability that second dice for number 5, that is also 6/36. Probability that both the dice for number 5, दोनों पे number 5, that is 1/36. Law of addition apply कर लो. PA plus PB minus PA intersection B. Okay, 6/36 plus 6/36 minus 1/36, that is 11/36. Okay, पहला. दूसरा क्या बोला? At least the first dice for the number 5 or 6 and the second dice show the number as even number. Okay, first die पे देखो सेंटेंस. Probability that के बाद ये पूरा कॉपी कर दे. Probability that ये पूरा कॉपी कर दे. ओके, पहले डाइस पे नंबर 5 और 6 होने चाहिए. आपके डाइस का ऑलरेडी सैंपल स्पेस का आंसर अवेलेबल है. पहले डाइस पे 5 और 6, 5 के 6 आते हैं, 6 के भी 6 आते हैं. एक वो हो गया. ठीक है, उसके बाद पूछा गया है एंड द अदर डाइस सो द इवन नंबर. सेकंड जो नंबर है वो आपका इवन नंबर. दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल करते हैं. अगर हम लोग उसको लिखते हैं PC लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर देते हैं. ओके, पहले लाइन में 5 और 6 हो और सेकंड लाइन में इवन नंबर हो. मतलब 5 2 5 4 5 6 6 2 6 4 6 6. तो कितना हुआ? 6/36. 1/6. इस पर अगर लिखना है आंसर तो लिख दो 5 2 5 4 5 6 6 2 6 4 6 6. तो मार्क्स करने के चांसेस नहीं. We already have written the sample space. Then write down this way. तो हमारे मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे. Number 12. Number 12. A problem in mathematics is given to Tanya, Kathan and Kirtan to solve. The probability of them solving the problem correctly is 2/3, 3/4, 1/2 respectively. Find the probability that the problem is solved correctly. तानिया, कथन और किर्त सॉल्व कर सकते हैं 2/3, 3/4 और 1/2. करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. मुझे सॉल्व किया हुआ चेक करेक्टली, चाहे कोई भी करे, तीनों तीन में से. ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहले. चलो सेंटेंस देखो. Probability that Tanya can solve the sum correctly. Probability that Tanya can solve the sum correctly. P of A m/n 2/3. P of A m/n 2/3. Next sentence. Probability that Tanya cannot solve the sum correctly. Probability that Tanya cannot solve the sum correctly. So P of A dash m/n. So P of A dash will be 1/3.
3 में से 2 बार कर सकती है तो 1 बार वो नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी दैट कथन कैन सॉल्व द सम करेक्टली। प्रोबेबिलिटी दैट कथन कैन सॉल्व द सम करेक्टली, P of P M upon N 3/4, 4 में से वो 3 बार सम करेक्टली सॉल्व कर सकता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी दैट कथन कैनॉट सॉल्व द सम करेक्टली। प्रोबेबिलिटी दैट कथन कैनॉट सॉल्व द सम करेक्टली, P of P dash M upon N 1/4, P of P dash M upon N 1/4। पहले देखा सॉल्व कर सकता है, फिर देखा सॉल्व वहां पे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी दैट कीर्ति कैन सॉल्व द सम करेक्टली। प्रोबेबिलिटी दैट कीर्ति कैन सॉल्व द सम करेक्टली, P of C M upon N 1/2, P of C M upon N 1/2। Next sentence, probability that Kirti cannot solve the sum correctly. Probability that Kirti cannot solve the sum correctly, PC dash equal to 1/n, that is also 1/2। तो ये सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे तो कोई भी सॉल्व करेगा चलेगा। इसने किया, इन दोनों ने नहीं किया तो भी चलेगा। इसने किया, इन दोनों ने नहीं किया तो भी चलेगा। इसने किया, इन दोनों ने नहीं किया तो भी चलेगा। मैं 3 अलग अलग करने पर उससे मैं ऐसा मानता हूं किसी से भी सॉल्व ही नहीं होगा। P A dash intersection B dash intersection C dash is equal to P A dash multiply by P B dash multiply by P C dash is equal to 1/3 into 1/4 into 1/2, that is 1/24। ये क्या है, किसी से भी सॉल्व ही नहीं होगा। ऐसा मुझे किसी ना किसी एक से भी सॉल्व हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट 1 से भी सॉल्व हो तो भी चलेगा। Therefore किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ, ओके, उसको मैं 1 में से निकाल देता हूं, 23/24। तो किसी भी एक से सॉल्व हुआ होगा, दैट इज 1 - 1/24, दैट इज 23/24। अगर सॉल्व करने को दिया है, सम टारगेट को हिट करने दिया है, तो ऐसा मान लेना कि नहीं होता है। पहले नहीं होता है वाला फाइंड कर लो, नहीं होता है वाले को मल्टीप्लाई कर दो और उसको लास्ट में 1 में से माइनस कर दो, यू गेट द फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 तक आज करते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, even exercise 1.5। okay, so till that time stay home, stay safe and keep learning. Solve all these particular sums whichever is there in the board itself today, twice, thrice, जितनी बार चाहे उतनी बार सॉल्व यहाँ पे करें। Until unless आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज मैंने आपको पहले ही लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू from sum number 7 to 15 all the sums are very much important, then you have to decide कि क्या करना है क्या नहीं करना। So stay home, stay safe. Thank you all once again. Have a nice day.